Hello my dear students, I hope that you all are doing good and myself Isha Mahajan, and today we are going to start our session 25 to practice questions of previous year paper 2023. Okay, the paper is divided into four parts. Okay, how many parts? Like four parts. Okay, four parts like in first is your logical reasoning, right? Second is mathematical reasoning, okay, and third is your everyday mathematics, and last is, yes, last is your achiever section. Okay, now in this video we are going to cover logical and mathematical, and in the upcoming video, means in the next video, we are going to cover everyday and achiever section. Okay, logical, mathematical and everyday questions contain only 1 marks. Okay, 1 marks, where achiever question having 3 marks. Okay, so now be ready with your notebook and pen and let's get started. Okay, now this is question number 1 of your PYQ 2023. In the given Venn diagram means it's a mixture of, or a mix of different figures, rectangle, triangle and circle. Now read what information is given. Rectangle represents children going to school. Okay. Circle represents children living in a village, and triangle represents children who like sports. Okay. Now which of the following number represents children who live in a village? Live in a village, तो क्या live in village present कर रहा है हमारा? Yes, circle. तो circle तो होना ही चाहिए. Okay, circle होना चाहिए. ये वाला circle है, right? And who live in a village and go to school also. Rectangle क्या represent कर रहा था? तो हाँ, rectangle represent कर रहा था जो जा भी रहे हैं, ठीक है? And now and go to school but do not like sports. ठीक है, अगर हम पूरा करें तो इस यहाँ पे क्या आ रहा है? रेक्टेंगल तो आ ही रहा है, ट्राइंगल भी आ रहा है और सर्कल भी आ रहा है, लेकिन हमें तो क्या करना है? हु लाइक स्पोर्ट्स ओनली. इट मीन्स हमें माइनस करना पड़ेगा ट्राइंगल वाला पोर्शन. ट्राइंगल वाला पोर्शन माइनस करोगे तो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आप ये वाला कलर देखिए, ठीक है, ये वाला कलर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ रेक्टेंगल और यहाँ पे सिर्फ सर्कल आ रहा है, ठीक है. हमें ट्राइंगल नहीं लेना है, बिकॉज ट्राइंगल हु लाइक स्पोर्ट्स एंड वी नीड टू फाइंड हु डू नॉट लाइक स्पोर्ट्स. तो ट्राइंगल वाला पोर्शन माइनस करो तो कौन सा नंबर आ रहा है? 15 है, तो ऑप्शन क्या है? सी विल बी योर करेक्ट आंसर. Okay, question number 2. How many such pair of letters are there in word digital? Digital, right? ऐसे हम इसको लिखते हैं डिजिटल में. तो आपको बताना है कि जैसे कि D और I में कितने अल्फाबेट्स हैं जो कि एग्जैक्टली इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी हैं. लाइक D और I में, देखो कितने सारे हैं, 1 2 3 4, है ना, और यहाँ पे तो कोई गैप नहीं है. इट मीन्स ये तो पेयर नहीं बना रहे. I और G में, यहाँ पे भी 1 का गैप है ना, एच अल्फाबेट है तो ये भी नहीं बना रहे. नेक्स्ट G और I में अगेन नहीं बना रहे. I और D में भी नहीं बना रहे. T और A में भी नहीं बना रहे, और A और L में भी नहीं बना रहे. अब बैकवर्ड चले होते हैं तो L और A में नहीं बना रहे. L और T में, L और दिस इज L, दिस इज T, है ना, नहीं बना रहे. I और L में चेक करते हैं, ठीक है, I और L में, ठीक है, I और L में तो 2 का गैप है, J और K का, यस, तो यहाँ पे भी 2 का गैप है, T और A का. तो यहाँ पे 1 पेयर है, ओनली 1 पेयर इज देयर जहाँ पे 2 वर्ड्स का मीन्स 2 अल्फाबेट्स का गैप है, राइट हियर. तो A ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट. Okay, question number 3. Question number 3 is which of the following number lies on the face opposite to the face having number 2. Okay, कि 2 के जब आप इसको क्या करोगे, given net is folded, जब आप इसको पूरे को फोल्ड करोगे तो 2 के ऑपोजिट क्या आएगा? Yes, 2 के ऑपोजिट 3 आएगा, राइट. अगर 4 के ऑपोजिट यहाँ पे 5 आ रहा है, 1 के 6 के ऑपोजिट 1 आएगा, जब आप फोल्ड करोगे 2 के ऑपोजिट क्या आएगा? 3. तो B क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन, राइट. Okay, question number 4. Find the number of triangles formed in the given figure. And I am sure कि ये puzzle आपने कभी ना कभी solve किया होगा, ठीक है, right? Guess कर सकते हो कितना होगा? चलिए find करते हैं. तो 1 2 3 4 5, here 6, here 7, here 8 9 and 10, ठीक है. फिर बड़ी वाली 11, ये वाला 12 और ये सबसे बड़ा वाला yes 13, ठीक है. तो there are 13 means more than 12. It means D will be your correct answer, right? Okay, question number 5.
Raj is the brother of Aman. Okay, it means Raj plus Aman. Both क्या है? Brothers हैं, right? Is the mother and Shruti is the mother of Aman. Shruti is the mother of Aman. Shruti क्या है? Mother है. अगर ये इसकी मदर है ना, तो ये इसकी भी मदर होगी. नाउ एंड वाइफ ऑफ अमित. और श्रुति क्या है? एक वाइफ भी है किसकी? अमित की. ठीक है, श्रुति एक और रोल निभा रही है लाइक वाइफ, लेकिन किसकी? अमित की. एंड सौम्या. अब जो सौम्या है, ठीक है, सौम्या कौन है? मदर है किसकी? अमित की. ठीक है, सौम्या इज द मदर ऑफ अमित. देन हाउ राज इज रिलेटेड? यस, सौम्या और राज क्या होंगे? राज इसका क्या होगा? लाइक यस, ग्रैंडसन है ना, पोता, ग्रैंडसन. तो क्या ऑप्शन होगा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर. Question number 6. Select a figure from the option which is exactly embedded. Means यहाँ पे पूरा mix है, ठीक है, merge है in the given figure as one of its part. ठीक है, सबसे पहले एक triangle है. ठीक है, अब triangle कहाँ दिख रहा है? ये ऐसे triangle दिख रहा है आपको. ठीक है, लेकिन वो किस साइड पे? राइट साइड पे टर्न भी है. राइट साइड पे टर्न भी है. ओके, ये अगर एक ट्राइंगल है, ओके, बट ये राइट ट्राइंगल है, तो ये तो नहीं हो सकता. ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल है, तो ये तो इस साइड पे है, बट इसको फर्दर, ये भी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी नहीं हो सकता. ठीक है, तो ए ऑप्शन तो नहीं है. बी ऑप्शन, ट्राइंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए और थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी होना चाहिए और लेफ्ट को टर्न भी है. हाँ, तो बी ऑप्शन दिख रहा है. ठीक है, अगर सी ऑप्शन में देखते हैं तो ट्राइंगल इस तरीके से होना चाहिए, इन्वर्टेड ट्राइंगल. इन्वर्टेड ट्राइंगल तो नहीं दिख रहा है ना, इन्वर्टेड ट्राइंगल तो नहीं है. और इसमें एक स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो डी ऑप्शन भी नहीं है. इट मीन्स बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है. Okay, now question number 7. Select the correct mirror image of the bird if the mirror is placed vertically to the left. ठीक है, अगर हम यहाँ से परफॉर्म वर्ड लिखते हैं PERFORM और इसके वर्टिकली हमें क्या लगाना है? एक मिरर प्लेस करना है. ठीक है, इस तरीके से ये शेडेड पार्ट है. तो P का इमेज कैसा होगा? P का इमेज यस इस तरीके से, E का उल्टा, R का इस तरीके से तो लेफ्ट में हो जाएगा, F का राइट में है तो इस तरीके से, O सेम रहेगा, R लेफ्ट में, M भी सेम रहेगा. ठीक है, तो M. अभी ऑप्शन चेक करते हैं, तो M क्या है? ओके, ये. ठीक है, तो C और A ऑप्शन तो नहीं है, फिर ये रॉन्ग हो गया, तो B. तो B ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट. Okay, now question number 8. In certain code language, if detail, okay, DETAIL is written as EGUCJN, तो D E then H I होना चाहिए. अब I C और D ऑप्शन में नहीं है तो एलिमिनेट हो गया. E and G, तो मीन्स E and G में 1 का गैप है. इट मीन्स I में क्या होना चाहिए? I and K. J को लेफ्ट करना है, I K और J भी, B ऑप्शन भी नहीं है. इट मीन्स A ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर. Okay, now question number 9. The given question consists of a set of 3 figures. ठीक है, यहाँ पे 3 figures दे रखे हैं P, Q, R, showing the folding of pieces of paper. ठीक है, ये जो सर्कुलर पेपर है इसको फोल्ड किया जा रहा है. एंड फिगर आर शोज द मैनर इन विच फोल्डेड पेपर हैज बीन कट. और उसको किस तरीके से जब आप फोल्ड कर लेते हो, ठीक है, सर्कुलर पेपर को फोल्ड कर लेते हो, तो आपके पास एक ऐसा आर्क बनेगा. तो उसको हम क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं. वो कट कैसे, कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं? इस तरीके से, ऐसे, राइट, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको गैप देके इस तरीके से कर रहे हैं. Now select a figure from the option which show the unfolded form of figure R, जो कि unfolded, जहां पे भी फोल्ड नहीं किया गया है. ठीक है, इट मीन्स आप देखो इस फिगर में तो ये कट किया गया है. इट मीन्स यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे वन साइड पे सर्कल आ रहा है और यहाँ पे सिमिलरली. अब यहाँ पे देखो एक सर्कल मिसिंग है. इट मीन्स ए तो क्या है? रॉन्ग. यहाँ पे भी बी में भी रॉन्ग है, सी में भी ये रॉन्ग है, और डी में क्या है? यस, हेयर सर्कल्स, हेयर, हेयर एंड हेयर. इट मीन्स डी क्या है आपका करेक्ट आंसर, राइट.
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, पूजा वॉक्स 18 मीटर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। ओके, वो यहाँ पे खड़ी है, पूजा यहाँ पे खड़ी है एंड टुवर्ड्स 18 मीटर साउथ। ठीक है, मीन्स 18 मीटर ये होगा। ओके, लेट मी रेज दिस नाउ एंड देन टर्न लेफ्ट। ओके, लेफ्ट मीन्स हेयर एंड वॉक्स 8 मीटर. She turns left again means here and walk 9. Finally, she turns right here and walk 4. Now, how far she now from the starting point? तो ये था उसका starting point, right? Means आपको ये find करना है. इसको हम dotted कर लेते हैं. अगर ये हम एक्स्ट्रा पार्ट हटाते हुए और यहाँ पे थोड़ा सा नेम दे देते हैं ए, ये हो गया B, दिस इज C एंड दिस इज D एंड दिस इज E. इट मीन्स आपको क्या निकालना है, यू नीड टू फाइंड AC, राइट. यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट. पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें AB टोटल कितना था, टोटल AB कितना है 18. ठीक है, अगर AB 18 है और ये है 9, इट मीन्स AE कितना हो जाएगा, AE इज इक्वल टू AB माइनस EB. EB कितना है 18, EB कितना है 9, दैट इज 9 सेंटीमीटर. तो 9 सेंटीमीटर हो गया आपके पास AE. ठीक है, इसको कर लेते हैं हम मार्क, यूज करेंगे. अभी BD. ठीक है, अब हमें ये निकालना है ये वाला पॉइंट. ठीक है, ये इसको हम ले लेते हैं, F ले लेते हैं. हमें चाहिए EF, सॉरी हमें चाहिए EC, है ना. EC चाहिए. EC कैसे बन रहा है, EF प्लस FC. EF कितना, अगर ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. और FC कितना 4, 12. तो EC कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, राइट. नाउ इन ट्राइंगल AEC, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर. AE स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर 81, EC स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर 144. ठीक है, 81 प्लस 144. नाउ 4 प्लस 1 5. जहाँ पे भी आपको लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 और 8 प्लस 4 2 1. इट मीन्स यहाँ पे हो रहा है आपका 144 और 81 5 2 1 225, राइट. 225. अब 225 AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225. क्या करोगे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड. अब AC स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल एंड AC इज इक्वल टू 15. देयरफॉर ऑप्शन D विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द गिवन सीरीज. ठीक है, ये हमारे पास कुछ सीरीज के पार्ट्स हैं जिसको हमें स्टडी करते हुए, मीन्स रिलेशनशिप सेट करते हुए, ये वाला जो ब्लैंक है क्वेश्चन मार्क है इसको फिल करना है. तो E और G में गैप देखो तो कितना है, F का गैप है, राइट. A 1 अल्फाबेट, G और I में अगेन 1 अल्फाबेट, I और K में अगेन 1 अल्फाबेट एंड K और नेक्स्ट वाला कौन सा होगा M. तो M किस किस में, C में और D में नहीं है, A और B में है. तो फर्दर हमें चेक करते हैं आगे X और V में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, X और V में रिलेशनशिप है बैकवर्ड, X और V में तो 1 अल्फाबेट. नेक्स्ट V और T में अगेन 1 अल्फाबेट. देन T और R में अगेन 1 अल्फाबेट S का. इट मीन्स R से हमें बैकवर्ड जाना पड़ेगा P ऑप्शन. तो P ऑप्शन किसमें, B में, MPT. तो B ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, सिमिलरली LN अगेन फॉरवर्ड, देन N एंड P अगेन फॉरवर्ड और R से फॉरवर्ड क्या जाएगा T. तो MPT. तो B विल बी योर करेक्ट आंसर. Now question number 12, which of the following option doesn't satisfy the same condition of placement of dots as in the given figure. ठीक है, तो अगर आप फिगर देखोगे यहाँ पे this is circle, this is square, this is triangle. ठीक है, सब में ये जो डॉट है, ठीक है, ये वाला जो डॉट है ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है. ये ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये स्क्वायर में भी आ रहा है और ये आपका सर्कल में भी आ रहा है, राइट. अब सिमिलरली यहाँ पे अगर हम कुछ डॉट फिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हो सकता है बिकॉज सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं. एक सेपरेटली भी आ रहा है जहाँ पे अकेला इसमें जाएगा, ट्राइंगल में जाएगा, तो यस यहाँ पे अकेला ट्राइंगल में भी जा सकता है. और एक जा रहा है जो सिर्फ स्क्वायर और ट्राइंगल में, तो स्क्वायर और ट्राइंगल वाला पार्ट कौन सा हो सकता है, लाइक ये वाला, है ना, ये वाला. तो
ए में तो फिट हो रहा है, बी में देखो तो बी में गैप है, अगर ये गैप है इट मीन्स ये ओवरलैप नहीं होगा और ये जो सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट है वो फॉलो नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है। सिमिलरली यहाँ पे देखो तो सबसे पहले एक तो ओवरलैप में आना चाहिए जहां पे सब कुछ ओवरलैप हो रहा है, तो ये वाला ओवरलैप हो रहा है। एक ट्राइंगल और स्क्वायर वाला ही होना चाहिए, ट्राइंगल और स्क्वायर वाला ये है, और एक होना चाहिए आपका स्क्वायर वाला और यस एक होना चाहिए स्क्वायर वाला और ट्राइंगल वाला, तो स्क्वायर वाला और ट्राइंगल वाला ये है, और बाकी ये आना चाहिए ट्राइंगल अकेले में, ठीक है, ट्राइंगल अकेले में यहाँ पे, तो सी में भी सेटिस्फाई हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, ठीक है। एक अकेला ट्राइंगल में, एक स्क्वायर में और ट्राइंगल में, एक स्क्वायर में और ट्राइंगल में यहाँ पे, और एक जो तीनों में, तो बी ही ऑप्शन में, बिकॉज देयर इज अ गैप तो वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इट मीन्स बी आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन। Okay, now question number 13. There is a certain relationship between figure 1 and 2. Figure 1 और 2 में कुछ रिलेशनशिप है, उसी की हेल्प से हमें फोर्थ में क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप ट्राइंगल देखो तो ट्राइंगल मिडल में दोनों में है, सिमिलरली सर्कल भी दोनों में होगा जो कि सभी ऑप्शंस में है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो डायगनली ये आपका सर्कल शेडेड है और डायगनली यहाँ पे है, ठीक है। इट मीन्स अगर यहाँ पे ये ट्राइंगल है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ट्राइंगल होना चाहिए। अगर ये माइनस साइन है तो ऑपोजिट भी यहाँ पे माइनस साइन है, मीन्स यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है मीन्स अगर यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, और अगर यहाँ पे ये अनशेडेड वाला है तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास शेडेड होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ मिलता है किसी भी फिगर में तो वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज मिडल वाला तो सब में सेम है। तो चेक करते हैं, शेडेड प्लस डिवाइड, ये बिल्कुल ए ऑप्शन में बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे नॉन शेडेड हो रहा है, गलत है। यहाँ पे नॉन शेडेड बट यहाँ पे प्लस होना चाहिए जो कि डिवाइड है। यहाँ पर ट्राइंगल है जो कि स्क्वायर होना चाहिए, इट मीन्स जो ए है वो क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ at the rate denotes plus, okay, dollar denotes divide and hashtag denotes multiply and c denotes add the minus, then find the value of 32. okay, 32 at the rate पे क्या लगाना है प्लस, 4 हैशटैग पे क्या निकालना है मल्टीप्लाई, 57 डॉलर साइन पे क्या लगाना है डिवाइड, एंड डिवाइड 19 एंड सी पे क्या लगाना है आपको -6, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे बोर्ड मास फॉलो। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट है, ऑफ है, देन डिवाइड है, ठीक है। तो 32 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा, आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3 - 6। नाउ मल्टीप्लीकेशन, 32 प्लस 12 - 6, then addition, तो 2 to 4, 44 - 6, 44 - 6, 4 - 6, 8, and then 3 and यानी मीन्स 38। 38 कौन सा है, लाइक बी, तो बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर, राइट। Okay, now question number 15. Select a given figure from the option which will complete a given matrix. ठीक है, फिगर मैट्रिक्स को कंप्लीट करना है, जो भी गिवन है, लाइक ये दोनों गिवन है, इनको ऑब्जर्व करते हुए हम ये वाला फिल करेंगे, ठीक है। अगर इसका मैट्रिक्स फॉलो करो तो यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट कॉर्नर पे है और इसका इमेज उल्टा होके लाइक बॉटम में जा रहा है। डार्क लाइट, लाइट एंड डार्क ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ पे भी लाइट और दोनों डार्क जा रहे हैं नीचे, और यहाँ पे क्या एक डार्क ऊपर जा रहा है। अब हम थर्ड वाले का देखते हैं, तो डार्क और दोनों का नीचे लाइट है, और कहाँ पे आना चाहिए, यस इस वाले कॉर्नर में फिगर आना चाहिए, तो उसमें ये है और एक ये वाला, तो मीन्स ये बी और सी तो हो गए डिलीट। लेकिन अगर यहाँ पे तीनों डार्क नहीं है ना, यहाँ पे देखो लाइट है तो एक डार्क है, यहाँ पे 2 डार्क है तो एक लाइट है, यहाँ पे 2 डार्क है और एक लाइट होना चाहिए, इट मीन्स डी ऑप्शन क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपका 16th क्वेश्चन है, ठीक है, मैथमेटिकल सेक्शन में से, और ये सेक्शन है आपका, क्वेश्चन है लाइक 5 1/6 minus in bracket what we have 1/5 plus 2 3/4 divided by 5 1/2 divided by x minus ब्रैकेट में क्या है 5/6 minus 2/3, और ये है आपके ब्रैकेट्स क्लोज्ड, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, यस, और लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड में हमारे पास 261/120 है, ठीक है, उसको साथ में लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में 5 1/6 माइनस 1 1/5, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 1 6/5
plus 2 4s are 8, 8 plus 3 11 divided by 5 2s are 10 or 11 by 2 divided by x minus 5 by 6, 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6 और 5 माइनस 3 2s और 2 2s 4, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है 2 into 20 मीन्स 240, 240 और 61, 240 और 61, 4 और 6 10 और मीन्स 301, 301 by, yes we can write here 301 by 120। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी वी हैव 5 1 by 6 माइनस 6 by 5 प्लस 11 by 4, साइन चेंज करोगे मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 by 11 और यहाँ पे 1 by x माइनस ये क्या हो गया माइनस माइनस नहीं है ना 6 6 5 3 2 4, हाँ तो 5 minus 4 1 by 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 301 by 120, 5 6 30, 31 by 6 कैलकुलेट करते हैं रिड्यूस करते हैं कितना भी हो सकता है और 11 और 11 कैंसिल 2 और ये बन गया आपका 1 by 2 और x राइट माइनस 1 by 6 इज इक्वल टू 301 by 120। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है तो सारा ओपन कर लेते हैं 31 by 6 माइनस 6 by 5 माइनस 1 by 2x and plus 1 by 6 is equal to 301 by 120 राइट। x वाले को एक साइड पे रखते हैं क्योंकि हमें उसके वैल्यू निकालना 31 by 6 माइनस 6 by 5 प्लस 1 by 6 माइनस 301 by 120 is equal to 1 by 2x राइट। नाउ जब आप ये इक्वेशन बन जाएगा ठीक है x का वैल्यू निकालना है x का यहाँ पे एलसीएम लोगे ठीक है पूरा सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 by 13। स्टूडेंट्स प्लीज डू दीज कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ एंड कंफर्म योर आंसर्स ओके फ्रॉम देयर। नाउ 4 by 13 ऑप्शंस में देखते हैं तो ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर राइट। Okay, now students, we have question number 17. What will be the least number which when doubled, okay, will be exactly divisible by 12, 16, 21 and 36. एक तो है least number means least number सबसे छोटा number it means least common multiple. You need to find least common multiple that is LCM, right? अगर LCM find करते हैं वो आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना जिसका हम डबल करते हैं, जब डबल करते हैं तब वो क्या होता है एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स बाय विच नंबर्स लाइक 12, 16, 21 एंड 36। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं वो फुल नंबर एक जो आपका नंबर है वो क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 6 2 8 21 and 2 18 राइट अगेन विद 2 3 6 2 4 8 21 and 2 9 18 3 okay let's try with the 4 first then 3 1 21 and 9 now with 3 3 1 1 and 7 and 3 then again with 3 1 1 7 and 1 and now with the 7 1 1 1 and 1 now 2 2s are 4 4 2s are 4 4 are 16 16 3s are 48 48 and 21 right so 8 and 4 2 8 are 16 4 2s are 8 and 1 9 so 8 0 1 and 8 9 sorry here will be 9 and here 1 0 so answer will be 1008 right but this is the doubled number ठीक है। अब इसको अगर हमने सिंगल करना है तो क्या करोगे 1008 डिवाइडेड बाय 2 राइट हमें तो लीस्ट नंबर निकालना है विच व्हेन डबल्ड तो ये 1008 ऐसा नंबर था जिसको डबल किया गया था। अब इसको अगर आप सिंगल करोगे मींस डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 5 10 then 0 and 4 4 2s are 8 so answer will be your C right so C will be your correct answer। Okay, now students we have a question number 18 in the given figure not drawn to scale find the angle BDF ये वाला ठीक है BDF निकालना। Let's say इसको हम x ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं y। If AB parallel to CD parallel to EF ठीक है given क्या है AB parallel to CD parallel to EF इसको हम थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा आइडिया आ जाएगा ठीक है। और हम यहाँ पे लेंगे ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टीज ठीक है इसका ट्रांसवर्सल ये है तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर पैरेलल लाइंस हो और ट्रांसवर्सल भी हो तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं ओके ये क्या है इंटीरियर एंगल है इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 के इक्वल इट मींस 180
प्लस x इज इक्वल टू 180, राइट। x इज इक्वल टू 180 माइनस 158, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 2, तो इसको ले लेते हैं हम 1, ठीक है। तो x हमारा आ चुका है। अब नीचे वाली लाइंस लेंगे बिकॉज सी डी पैरेलल टू ई एफ भी है और इसका ट्रांसवर्सल क्या है, ये है, इसका ट्रांसवर्सल ये है, तो इट मीन्स ये वाला एंगल 120 और y 120 प्लस y, ये सिमिलरली 180, ठीक है। रीजन क्या है यहाँ पे, मीन्स जो आपके को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे भी ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो ये हो गया 60, मार्क इट एज 2। अब दोनों को हम ऐड करेंगे मींस x प्लस वाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल बी डी एफ। x कितना है, यस 22 और y कितना है 60, तो 20 प्लस 60 कितना होगा 82। इट मींस एंगल बी डी एफ जो है वो क्या है, बिल्कुल 82 डिग्री। ऑप्शंस में देखो तो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे रिवाइज करना है किसका प्रॉपर्टीज, यस ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, which of the following doesn't have, okay, doesn't have any line of symmetry, ठीक है। ए ऑप्शन को देखो तो स्टूडेंट्स लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि अगर आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो पोर्शन है वो राइट हैंड साइड पोर्शन की इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से देखो, ये ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसका ये वाला पोर्शन, यस टॉप पोर्शन बॉटम पोर्शन की इक्वल है, तो यस इट्स हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस वन, इसको अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो यस ये वाला पार्ट जो है इसका इस पार्ट के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, मींस हमें तो फाइंड करना है डजंट हैव। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं तो इसको हम डिवाइड करते हैं लेकिन यहाँ पे लाइन क्या है, यस ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। Students, now question number 20. If 2 raised to power 4a minus 3 plus 10 in bracket divided by 6 is equal to 7, okay, then you need to find the value of a, right? So कोशिश करो कि a को हम एक साइड पे रखें, right? तो अगर हम ये वाले डिवाइड साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, राइट। अब इन दोनों को हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 4a माइनस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 72, सॉरी 42, ओके 6 7 सा 42, देन 2 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 42 माइनस 10, ओके ट्रांसपोज 42 माइनस 10 हो जाएगा, देन 42 माइनस 10 2 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 32। नाउ यू नीड टू फाइंड कि 2 को पार की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मीन्स 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं 32 को, राइट। ओके नाउ देयर बेस आर सेम, तो उनकी जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज इन बिटवीन वी हैव अ इक्वल साइन, तो 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 4a इज इक्वल टू ट्रांसपोज होके 8 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 8/4 दैट इज 2। ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन कौन सा है, डी, therefore D will be your correct answer, right? So now we have a question number 21. Question number 21 is which of the following option is arranged in descending order, कि सबसे arranged descending order में कौन सा arranged है। बट स्टूडेंट्स नाउ वी हैव अ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, है ना, आप चेक करो सभी में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो यहाँ से हमें कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है, लेकिन सभी के डिनोमिनेटर सेम है, लाइक बस आगे पीछे करके लिखे गए हैं 20 10 5 12 सभी में यही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिग टू स्मॉल अरेंज करना है, बिग टू स्मॉल, ओके। देन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स का ले लोगे तो क्या आएगा 25 12 एंड 10, ओके। एलसीएम जब हम लेंगे तो 25 12 एंड 10 का स्टार्ट विथ 2, ओके 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। 5 से स्टार्ट करते हैं 5 4 5 1 5 12 एंड 5 2, देन नाउ 2 stable, right, 2 2s are 4 1 2 6 and 2 1s are, then again 2 1 1 3 1 and lastly 3, right, 1 1 1 1 and 1. Now LCM is 5 to 10 10 to 20 23 60, तो इसका LCM कितना हो रहा है 60 हो रहा है, ठीक है। अभी आप हर एक फ्रैक्शन पकड़ो तो सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं -5/20, ठीक है। इसका LCM क्या करना पड़ेगा, yes 60 इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, या नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बोथ द
विद 3, ओके। तो 5 3 से 15, देन -15/16, तो ये हो गया आपका 1 नंबर, ठीक है। इसको 1 मार्क कर लो। सेकंड क्या है, 2/5, 5 अगेन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 60 चाहिए, तो किससे करोगे, 12 से, तो 12 2 24, ये हो गया आपका सेकंड नंबर, ठीक है। फिर आ गया 7/12, अब यहाँ पे क्या चाहिए, 60 चाहिए, 5 से इंटू करोगे, और 7 5 35, इसको कर लीजिए 3 मार्क। नाउ लास्ट इज -9/10, और यहाँ पे चाहिए आपको 60 अगेन, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से ही डिवाइड करोगे, तो 9 6 -54/60, तो ये हो गए हमारे 4 नंबर्स। लेकिन हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन सबसे बड़ा नंबर चाहिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, मीन्स होगा तो पॉजिटिव में से ही, है ना। तो पॉजिटिव में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 35/60। 35/60 कहाँ से आ रहा है, 7/12 से। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो कहाँ से आ रहा है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फर्दर चेक कर लेते हैं एक बार, 35 के बाद कौन सा आएगा, 2 वाला, मीन्स 24/60, ये कहाँ से आ रहा है, 2/5 से, राइट। उसके बाद अब -15 है और ये -54 है। आपको स्टूडेंट्स पता है कि नेगेटिव में नंबर और छोटा हो जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, -15/60 मीन्स 1 वाला, और ये कहाँ से आ रहा है, -5/20 से, और लास्ट -9/10। तो करेक्ट सीरीज कौन सी बन रही है, सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। Student, now question number 22, which of the following is a net of the given figure? Net of the given figure कि जब आप फिगर को ओपन करोगे, ये वाले फिगर को ओपन करोगे तो आपको किस तरीके का फिगर दिखाई देगा A B C D में से, राइट। अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं तो ये फिगर 1 2 3 4, ये पेंटागन एक साइड पे है और दूसरा पेंटागन भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इमेजिन करो इस फिगर को देखने का टॉप व्यू से। अगर आप टॉप व्यू देखते हो तो आपको पूरा क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पे भी इसके साइड्स हैं, राइट। ये साइड है और नीचे बेस भी है, ये वाला बेस है। अब आपको मेनली क्या सर्च करना है कि पेंटागन्स कहाँ कहाँ है। तो ए शेप में तो पेंटागन नहीं है, बी में फाइंड करेंगे तो यस, तो 1 2 3 4 5 1 पेंटागन, और यहाँ पे भी सेकंड पेंटागन, थर्ड में भी पेंटागन नहीं है, नन ऑफ दीज टू आंसर नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स बी आपका क्या है, यस, क्लियरली करेक्ट ऑप्शन। Now 23rd question. 23rd question is which of the following is not a Pythagorean triplet? Okay, तो Pythagorean triplet में सबसे पहले हम Pythagoras theorem को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। Pythagoras theorem क्या है, एक ट्राइंगल है जहाँ पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है आपका बेस है, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। पाइथागोरन थ्योरम होता क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे भी पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, कोई भी नंबर अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मींस अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, तो वही नंबर क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। अब हम सेम ये थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपको स्टूडेंट्स ये भी पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, ठीक है। अब हम तीनों नंबर को देखते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 25, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। तो 25 का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर का। अगर ऐसा होता है 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। कुछ स्क्वायर्स आपको लर्न भी कर लेने हैं, ठीक है। जैसे 25 का स्क्वायर 625 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 24 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, ठीक है। 24 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 16, 1 2 4 8 9 2 4 8 4 4 and 6 9 9 18 then 17 and this is 576, ठीक है। अब अगर ये 625 जो आ रहा है, अगर हम राइट हैंड साइड भी कैलकुलेट करते हैं, तो 9 + 6 5 1 7 और 4, तो 2 और 1, तो 625। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, इट मीन्स ये तो क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ओके। तो इस तरीके से आप बाकी ऑप्शंस के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये तो है, बट वी नीड टू फाइंड अ नॉट, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो नहीं है, ओके। नाउ लेट मी इरेज दिस, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ यस बी ऑप्शन, राइट। बी ऑप्शन में क्या है, सबसे बड़ी साइड आप सिलेक्ट करो, 15 20 25 25 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 625 अगेन 15 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 225, राइट। 20 का स्क्वायर करोगे 0 0 और 4, देन अगेन 625 क्या होना चाहिए, तो 5 2 एंड 625, तो ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट हो रहा है। इट मीन्स बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, अगेन बिकॉज हम फाइंड कर रहे हैं नॉट वाला, ठीक है, नॉट वाला, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब इनमें से सिलेक्ट करो, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 12, ये क्या है 7, और ये क्या है 5, सबका कर दो स्क्वायर, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं पाइथागोरन
ट्रिपलेट। तो 12 12 144, 7 7 49 प्लस 5 25, तो 9 प्लस 5 14, 1 4 2 6 और 7 और ये 144, ठीक है। तो ये तो हमारा पाइथागोरस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इट मींस इट्स नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ तक तो अभी बन रहा है कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी के लिए भी चेक करते हैं, ठीक है। लेट मी रेज दिस क्विकली एंड हम करेंगे किसके लिए, डी ऑप्शन के लिए, राइट। अब डी ऑप्शन के लिए अगर हम देख रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 29, राइट। 29 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 21 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। जिसके भी आपको स्क्वायर होता है पहले तो वो लिख लेते हैं, लेकिन 29 का स्क्वायर तो करके देखना पड़ेगा, राइट। इतना नहीं है, 29 का स्क्वायर तो 9 9, यस 9 9 81, 1 8, 2 9 18, 18 प्लस 8 26, 2 9 18, 2 2 4 1 5, देन 1 4 1, तो 841, 841 आ रहा है। यहाँ पे 21 का स्क्वायर भी कर लेंगे। 21 का स्क्वायर क्या होगा आपका, नाउ 21 का स्क्वायर 1 2 and 4, देन 441, राइट, 441। और इसका कितना होगा 004, ये तो इजी है ना। तो 1 4 और 8, तो 841, तो ये भी 841 होगा। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड। इट मीन्स ये भी क्या एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बट हम तो फाइंड कर रहे हैं नॉट। इट मीन्स जो आपका सी में जैसे कि हमने फाइंड किया, तो सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर, राइट। Okay, now we have a question number 24 or 25 हमें करना है with the help of this graph only. Actually this is double bar graph, right? और बोला क्या गया है, find the ratio, ठीक है, find the ratio of PVR X on Monday and Wednesday together, ठीक है। तो PVR X कौन सा दे रखा है, यहाँ से इन्होंने स्केल में दे रखा है हमें, this is a scale, कि जो आपका अनशेडेड बार है, ठीक है, अनशेडेड बार मीन्स ये वाला, ठीक है। मंडे का क्या होगा, लाइक 400, ठीक है। पीवीआर एक्स के लिए क्या रहेगा 400 प्लस वेंसडे के लिए, वेंसडे दिस इज वेंसडे और दिस इज 300, राइट। तो 300, तो ये कितना हो गया आपका 700। पीवीआर वाई के लिए भी सिमिलरली निकाल लेंगे। पीवीआर वाई का क्या है, ट्यूसडे, ट्यूसडे में चेक करेंगे तो 800, राइट, दिस इज 800 और फ्राइडे, तो फ्राइडे का ये वाला तो मीन 700, ठीक है। आप इसको यहाँ से ड्रॉ करके भी देख सकते हो, तो ये 700, ठीक है। तो ये कितना हो गया 007850। अब आपको निकालना रेशो, रेशो कैसे निकालते हो, रेशो साइन ये होता है 1500, और इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम रेशो में इस तरह से लिख सकते हैं। तो 0 और 0 कैंसिल, तो आंसर क्या है 7:15, और ऑप्शन कौन सा बन रहा है, यस सी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Okay, now we have a question number here 25, okay, सेम बार ग्राफ के साथ ही आपको 25 क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। now it's been asked like if each movie ticket cost ₹250, ठीक है, हर एक टिकट, ठीक है, अगर 250 का है, then how much more money earned by PVR X, उसने कितना ज्यादा कमाया है then PVR Y, ठीक है। it means on all the given 5 days। तो सबसे पहले आपको क्या करना, PVR X के लिए जितना भी है ग्राफ्स की हेल्प से, लाइक ये 400 है, देन यहाँ पे ये 600 है, देन ये 300 है, देन 800 है, एंड देन 900 सेम 800 है, राइट। तो ये सारे आपको क्या करने हैं, ऐड कर लेने, ऐड करके अमाउंट कितना आ रहा है 2900। नाउ टोटल मनी अर्न, टोटल मनी अर्न अगर एक टिकट का 250 है, इट्स गिवन, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 250, ठीक है, ऑल द टिकट्स। नाउ 72500 ये आपका अमाउंट आ जाएगा, किसके लिए, पीवीआर एक्स के लिए। फिर पीवीआर वाई के लिए सिमिलरली कैलकुलेट करोगे, ठीक है। पीवीआर वाई के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो रहा है आपका, सबसे पहले ये मिडिल में जा रहा है तो 650, ठीक है। फिर ये आपका 800, फिर दिस इज 500, देन दिस इज 200 एंड दिस इज योर लाइक 700, राइट। ये आपका हो रहा है 700। तो सिमिलरली इनके लिए निकालोगे 2850। बट स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्राफ को केयरफुली स्टडी करना है, ठीक है। अब टोटल मनी अर्न सिमिलरली जैसे कि हमने पीवीआर एक्स के लिए किया था, 250 से इंटू करोगे तो 712500। नाउ दे सेड कि हाउ मेनी मच मोर मनी अर्न बाय पीवीआर एक्स, कितना एक्स ने ज्यादा कमाया। यस, ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा। तो अब आपके पास अमाउंट कितना आ रहा है 12500, राइट।
इट मीन्स अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन में क्या है 12500, ये ऑप्शन तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स यू नीड टू बी फास्ट इन योर कैलकुलेशन एंड perfect in reading the graphs, right? Okay, now student, we have a question number 26. Okay, in the given figure not drawn to scale, AB is equal to BC. ठीक है, इसको डॉट से ज्वाइन कर देते हैं, BC is equal to CD. तो AB टोटल कितना है, टोटल AD कितना है आपके पास 14 सेंटीमीटर, एंड वी हैव गिवन AB is equal to BC is equal to CD. इट मीन्स हमको 42 को क्या करना है, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इक्वल पार्ट में मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स AB भी 14 सेंटीमीटर है, BC भी और CD भी। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर निकालते हैं। तो अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है, तो पेरीमीटर एक्चुअली क्या है, बाउंड्रीज, ठीक है, तो ये एडी बाउंड्री बन गया, छोटे वाले सेमी सर्कल का देखो तो बीसी बाउंड्री बन गया, फिर हमारे पास ये भी साइड्स तो हैं, ए बी और सी डी भी है, तो प्लस ए बी प्लस सी डी। अब जिसका वैल्यू पता है हम उनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ए डी, तो स्टूडेंट्स ये है क्या, ये तो है सेमी सर्कल ही। अब सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है वैसे सर्कल का, होता है 2 पाई आर। सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, 2 कैंसिल और फाइनली क्या आ गया, पाई आर, ठीक है, तो मीन्स पाई आर, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पाई आर। सिमिलरली बीसी के लिए भी पाई आर, और ए बी का वैल्यू हमने अभी निकाला 14 और सी डी का वैल्यू भी क्या निकाला है 14, ठीक है, दोनों का हो गया सब्स्टिट्यूट। अब ये पाए, अब इसका आर क्या होगा, इमेजिन करो कि हमने इसको, ये वाला सर्कल है, ठीक है, आउटर वाला सर्कल है, मीन्स इसका कहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा, इस पॉइंट से। सी डी तो ऑलरेडी कितना है 14 है, और ये पूरा 14 है, इसका मीन्स हाफ, तो 14 प्लस 7 किया जाएगा, राइट, प्लस पाई और इसका आर, अंदर वाले का आर, ये टोटल कितना है 14 और इसका हाफ कितना हो जाएगा 7, प्लस 14 कितने हो गए 28। नाउ पाई की वैल्यू 22/7 और 21 प्लस 22/7 और इंटू 7 प्लस 28, 7 3, तो ये कितना हो गया 66, 7 और 7 कैंसिल, 22 प्लस 28, कैलकुलेट करो, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 16, 1 कैरी, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10 और 116, तो 116 सेंटीमीटर। ऑप्शंस में चेक करो, यस, बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। Okay, now we have a question number 27. The simple interest on certain sum of for 8 months at 4% per annum is 129 less than the simple interest on the same sum of 15 months at the 5% per annum. Okay, we don't know the sum, so let sum be the P, and simple interest formula is P into R into T divided by 100, right? Okay, so please prepare your note sheets as well. Okay, it will be helpful in the final exam. Now P is only a P, R is 4/100 and 8 months, 8 months means 8/12, right, is P into R means 5% means 100 into 12 because 15 months and minus 129, okay. Now 8 4s are 32P upon 1200, here is equal to 1575P upon 1200, same, minus 129. Now we need to calculate P, so we'll keep P on one side, okay, then 129 will get here with the help of transpose, then 75P upon 1200 minus 32P upon 1200, right, then 129 is equal to 1200 will be the LCM, then 75P minus 32P, 129 is equal to 5 minus 2 3, 7 minus 3 4 upon 1200 into P, right. Now we need to calculate P, so 129 into 1200 upon 43 is equal to P. Now when you are going to calculate, what we will get, okay, you need to we can't cancel out anything, so we need to multiply 129 into 12 and divide by 3, therefore P is equal to approximate 3600, right. So B, then D will be your correct option. If we will check the answer, then D option will be your correct answer, right. Now question number 28, find the value of P and Q. The sum of integer is 71. If one of them is minus 101, then other is P. Okay, then other integer is P, so it means minus 101 plus P is equal to 71 and P is equal to 71 plus 101. तो P is equal to क्या हो गया
2 7 एंड 1, तो 172। तो P का वैल्यू कितना हो गया 172। इट मीन्स ए ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन हो सकता है। सिमिलरली हम क्यू भी कैलकुलेट करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड क्यू इज जीरो, मीन्स आंसर में क्या आना चाहिए जीरो। इट मीन्स क्यू की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लो आप, 2 3 4 एनी इंटीजर, उसका साथ में अगर जीरो होगा तभी हमारे पास आंसर क्या होगा जीरो। इट मीन्स क्यू का वैल्यू क्या हो गया जीरो। अब इट मैच विद यस इन द ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 29 is if x minus 3 upon 5 minus 2x plus 1 upon 3 is equal to minus 7. Okay, find the value of x. तो क्या करेंगे 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15। नाउ 3x minus 3 एंड माइनस 5 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 5 2x प्लस 1 एंड 15 माइनस में आ जाएगा 5 7 35 5 एंड 3 105। ओके, तो 3x माइनस 9 माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 105। एक्स वाला टर्म एक साइड पे रखेंगे बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट एक्स, तो हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो माइनस 7x एंड माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन माइनस का आएगा बिकॉज 9 बड़ा है तो 9 5 14 and minus 105. Now minus 7x and minus 105 it will get positive means 14. So minus 7x now 5 minus 4 1 10 minus 1 9 and 0 तो minus 91। माइनस और माइनस कैंसिल तो x is equal to 91 by 7। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 1 जा 7 2 आ जाएगा और 7 3 जा 13। तो x is equal to क्या आ रहा है हमारे पास 13। 13 ऑप्शन देखें तो B will be your correct answer. Question number 30 is in the given figure the number of pairs of parallel lines. Okay, तो parallel lines कैसी होती है इस शेप में। ठीक है, अब आप फिगर में देखो तो P Q R these are the three parallel lines। तो P parallel to Q है, Q parallel to R है और P parallel to R है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई 3 लाइन्स लाइक हियर P parallel to Q, Q parallel to R and P parallel to R. Now similarly L parallel to M, M parallel to N and L parallel to N. तो L parallel to M, M parallel to N and L parallel to N, right? तो यहाँ पे भी हो गई 3, तो 3 plus 3 6, so 6 lines are the number of pairs of parallel lines. So B will be your correct answer. Okay, now we have a 31st question. 16, 80 and x are in continued proportion. अगर ऐसा है तो मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा 16 is to 80 double proportion sign and 80 is to x. Okay, now प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब ये वाला। ठीक है, एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हुआ 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स 80 इंटू 80। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट? तो एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 80 बाय 16। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 2's टेबल के साथ। तो 2 8s and 240 देन 220 and 2 4 and 5। ओके, तो क्या बना 0 and 8 5 is 40, तो 400। तो 400 ऑप्शन कौन सा है? यस, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन विल बी अ करेक्ट आंसर। Now question number 32 is if x is equal to 2, y is equal to minus 1, z is equal to 3, then find the value of expression. अब expression क्या है 3x square y plus 5xy square plus 6yz square plus 2xy z। ठीक है, एग्जाम्स में भी सबसे पहले आपने ये एक्सप्रेशन लिख लो। ठीक है, बिकॉज अगर ओरली करने लगोगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, टाइम सेविंग की बजाय टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे 3x, x का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर और y का क्या है -1, देन 5 x का वैल्यू 2 है, y का -1 है, तो -1 यहाँ पे पुट करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, देन प्लस 2x, x क्या है 2, y क्या है -1 और z क्या है 3। ठीक है, अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। 3 2 2 जा 4 और ये आंसर किस में आएगा माइनस में, राइट? माइनस साइन है तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो आंसर प्लस में ही आएगा, तो 5 2 जा 10।
यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर बिकॉज यहाँ पे माइनस है, तो 3 3 ज़ा 9, तो 6 9 ज़ा 54, और यहाँ पे भी माइनस में आएगा बिकॉज माइनस साइन इज देयर, 2 2 4 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये और 12, तो ये बन गया आपका -24 प्लस 10 -54, माइनस प्लस माइनस माइनस 24 माइनस आ जाएगा -14 -54, अब माइनस माइनस प्लस होते हैं नेगेटिव में आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शंस में देखो तो ए और बी ऑप्शन तो हो गया डिलीट, तो 4 + 4 होते हैं 8, तो सी ऑप्शन भी हो गया डिलीट, तो 68, तो मीन्स डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट्स। कौन कौन से डिजिट्स हैं? 4 6 0 एंड 2, ठीक है। ये हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, लेकिन आपको क्या बनाना है? 8 डिजिट नंबर बनाना है। सबसे पहले तो आप बनाओगे ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, GN लिख देते हैं इसको, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब क्या है कि आपने जो भी इसमें से बड़ा डिजिट है उसको वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कितनी बार स्टार्ट करेंगे? और ईच डिजिट एटलीस्ट वंस, ठीक है, हर एक डिजिट को आपने एक बार तो यूज करना ही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 6 6 और कितने चाहिए? 1 2 3 4 है, ठीक है, हमें चाहिए 8, तो 1 2 3 4 यही रिपीट कर लेते हैं, ओके। देन वी विल राइट, नाउ डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो 4 एंड देन 2 एंड 0। लेट्स चेक 1 2 3 4 5 6 7 अभी भी है, तो यहाँ पे इसको एक बार और रिपीट कर लेंगे, तो ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर, ओके, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, राइट। समझ में आया कैसे किया? हमारे पास जो भी डिजिट थे उनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है और सबसे बड़े डिजिट को मैक्सिमम टाइम रिपीट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड देन 4 4 डबल टाइम एंड 2 0। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर तो मीन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यस, स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पे क्या है? 0, बट 0 को अगर हम फ्रंट पे लिखते तो कोई मतलब नहीं बनते, तो नो एनी वैल्यू, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो कितनी टाइम रिपीट करेंगे? 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6 बचा है, तो इसको और टाइम रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके, लाइक दिस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? इसका डिफरेंस निकालना है, राइट। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे? बड़े में से छोटा माइनस करोगे, मतलब 6 6 6 6 4 4 2 0 then 2 0 0 0 0, how many times? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 4 और 6, राइट। इनको करना है आपको डिफरेंस, माइनस 10 माइनस 6 4। अब ऑप्शंस पे चलते हैं, तो 4 लास्ट में कौन है? यस, ए और सी तो हो गया डिलीट, राइट। अभी हमारे पास क्या आ रहा है? 4 इसमें बी और डी में आ रहा है, देन यहाँ पे हो जाएगा 11 11 माइनस 4 7, तो अभी भी ये चल रहा है। देन 3 3, तो बी ऑप्शन में 3 7 4 है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, 3 7 4 है, इट मीन्स बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर, ओके। Now 34 question, what percent of given figure is shaded? Okay, तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे ये ब्लॉक्स काउंट करने की कोशिश करते हैं तो कितना है? 1 2 3 4 और 5, ओके। 5 into how many dimensions in the like in the vertically? 1 2 3 4, तो 5 into 4 is equal to 20, so total blocks are 20, okay. Now how many are shaded? We need to find the percentage of shaded, so let's count half or half 1 और ये 2, तो 2, then this one 3, this is 4 5 6 7 and 8, so total are 8, or need to find the percentage, so multiply by 100, okay. 0 and 0 cancel, 2 5 and 8 5 is 40, it means 40% will be your correct answer. Let's check in the option, so means D, so D will be your correct answer. Okay students, now we have a question number 35. Okay, the expanded form of 5049.135. Okay, this is your left side, this is your right side. Okay, left side very normal, जैसे हम करते हैं normal है ना, 1s 10s 100, और ये क्या है 1000. 1000 प्लेस पे कितने जीरोज होने चाहिए? 1 2 3, 3 जीरोज होने चाहिए। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो फुल फोकस आपको ऑप्शंस पे होना चाहिए, ताकि जो गलत वाले हैं वो ऑप्शंस आप फटाफट से डिलीट कर लो, ठीक है।
तो अभी क्या है, ये 1000 है, यहाँ पे 100 है, तो ये तो कैंसिल। तो अभी ए बी सी में से फर्दर चेक करते हैं। 100 प्लेस पे क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 100 प्लेस पे 400 दिया गया है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। डी पे यहाँ पे भी रॉन्ग है। इट मीन्स जो बी पे, अब बी आपका करेक्ट आंसर बन रहा है, लेकिन बी को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो 4 प्लेस पे है, 10 कौन सी 4 प्लेस पे, मीन्स 40 होना चाहिए। 9 कौन सी प्लेस पे, 1 प्लेस पे। देन 1/10, 3/100 एंड 5/1000 बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन विल बी अ करेक्ट आंसर, राइट? So dear students, in today's video we have covered the logical section and the mathematical section. In the upcoming video we are going to cover achiever section plus everyday mathematics. So stay tuned.